اب علمی، فکری اور تاریخی تحریریں صرف پڑھی نہیں سنی بھی جا سکتی ہیں۔ اشراق، امریکہ کی آڈیو سٹوریز میں۔ حیات امین، سوانح مولانا امین احسن اصلاحی، قسط نمبر 23۔ صاحب تدبر قرآن کی وصیت کے مطابق ان کے سوانح نگار نعیم احمد بلوچ کے قلم سے مولانا امین احسن اصلاحی ابھی جیل ہی میں تھے کہ جسٹس منیر احمد اور جسٹس محمد رستم کیانی پر مشتمل ایک انکوائری کمیشن تشکیل دیا گیا۔ اس کمیشن نے جولائی 1953 سے جنوری 1954 تک تحقیق و تفتیش کی۔ 117 سماعتوں کے بعد 10 اپریل 1954 کو یہ رپورٹ منظر عام پر آئی۔ اسے عام طور پر منیر کمیشن رپورٹ یا منیر کیانی رپورٹ کہا جاتا ہے۔ پاکستان کے مذہبی تشخص کے پس منظر میں یہ رپورٹ بہت اہم ہے۔ اس رپورٹ میں مولانا امین احسن اصلاحی کا بھی ایک مفصل بیان شامل ہے، اس لیے ہم اس پر ایک اجمالی تبصرہ ناگزیر سمجھتے ہیں۔ رپورٹ میں اگرچہ حکومتی انتظامیہ کی ناکامی کے ساتھ ساتھ حکومتی جماعت، مسلم لیگ سمیت مختلف لوگوں اور مذہبی جتھوں کو ان فسادات کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا، مگر مجلس احرار کو ان فسادات کا سب سے بڑا ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ اس حوالے سے رپورٹ کے بعد ضروری حصے ملاحظہ فرمائیں۔ مجلس احرار کا وجود اور مقصد۔ مجلس احرار کا قیام ہی دراصل اس مقصد کے تحت ہوا تھا کہ وہ احمدیوں یعنی قادیانیوں کے مسئلے کو استعمال کرتے ہوئے عوام میں مذہبی جوش و جذبہ ابھارے اور اس بنیاد پر سیاسی مقاصد حاصل کیے جائیں۔ جسٹس منیر رپورٹ، باب 2، پس منظر۔ یاد رہے کہ مجلس احرار کے تمام بانی ارکان آل انڈیا کانگریس کے رکن تھے اور وہ کانگریس سے علیحدہ ہو کر مجلس احرار کی شکل میں منظم ہوئے تھے اور تقسیم ہند تک مسلم لیگ، محمد علی جناح اور قیام پاکستان کے سخت مخالف رہے تھے۔ مذہبی جذبات کا استعمال۔ احرار نے اس مسئلے کو ایک سیاسی تحریک کی صورت دے کر عوامی جذبات کو استعمال کیا اور حکومت کے خلاف ایک مذہبی بنیاد پر عوام کو مشتعل کیا۔ حوالہ رپورٹ کے خلاصے میں۔ ریاستی رٹ کو چیلنج۔ یہ ثابت ہوتا ہے کہ مجلس احرار نے مذہبی مقاصد کے پردے میں ریاستی نظم و نسق کو چیلنج کیا اور عوامی اجتماع اور تقاریر کے ذریعے سے لوگوں کو حکومت کے خلاف ابھارا۔ حوالہ رپورٹ میں احرار کی سرگرمیوں پر تبصرہ۔ قیادت اور جماعت کی ذہنیت۔ احرار کی قیادت جان بوجھ کر ایسا ماحول بناتی رہی جس سے عوام کی توجہ معاشرتی اور معاشی مسائل سے ہٹ کر صرف مذہبی جذبات پر مرکوز رہے۔ حوالہ رپورٹ میں سماجی تجزیہ۔ نتیجہ، احرار اور اسی نوع کی جماعتوں کی سرگرمیوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر مذہب کو سیاست سے الگ نہ رکھا جائے تو اس سے ریاستی ڈھانچے اور امن و امان کو شدید خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ حوالہ رپورٹ کا آخری باب۔ رپورٹ کے اس حصے کی روشنی میں ہم اس بات کا آسانی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کے موجودہ حالات کی صورت گری میں کن کن عوامل نے اہم کردار ادا کیا۔ مولانا اصلاحی کا بیان۔ ان فسادات کے دوران میں مجلس ختم نبوت نے احمدیوں کو غیر مسلم قرار دینے کا مطالبہ کر رکھا تھا۔ اس حوالے سے کمیشن نے مولانا اصلاحی سے احمدیوں کے مسلم اور غیر مسلم ہونے کے بارے میں دریافت کیا۔ مولانا کے جوابات اور کمیشن کے سوالات یہاں درج کیے جاتے ہیں۔ سوال: مسلمان کون ہے؟ جواب: مسلمانوں کی دو قسمیں ہیں، ایک سیاسی مسلمان، دوسرے حقیقی مسلمان۔ سیاسی مسلمان کہلانے کی غرض سے ایک شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ توحید الہی پر ایمان رکھتا ہو، ہمارے رسول پاک کو خاتم النبیین مانتا ہو، یعنی اپنی زندگی کے متعلق تمام معاملات میں ان کو آخری سند تسلیم کرتا ہو، ایمان رکھتا ہو کہ ہر خیر و شر اللہ کی طرف سے ہے، روز قیامت پر ایمان رکھتا ہو، قرآن مجید کو آخری الہام الہی ہونے کا یقین رکھتا ہو، مکہ معظمہ کا حج کرتا ہو، زکوٰۃ ادا کرتا ہو، مسلمانوں کی طرح نماز پڑھتا ہو، اسلامی معاشرے کے ظاہر قواعد کی تعمیل کرتا ہو، روزہ رکھتا ہو۔ جو شخص ان تمام شرائط کو پورا کرتا ہو وہ ایک اسلامی مملکت کے پورے شہری کے حقوق کا مستحق ہے۔ اگر وہ ان میں سے کوئی ایک شرط پوری نہ کرے تو وہ سیاسی مسلمان نہ ہوگا۔ پھر کہا، اگر کوئی شخص ان 10 امور پر ایمان کا محض اقرار کرتا ہو، گویا ان پر عمل کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، تو یہ اس کے مسلمان ہونے کے لیے کافی ہے، جبکہ حقیقی مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکام پر عین اس طرح ایمان رکھتا ہو اور عمل کرتا ہو
जिस तरह वो अहकाम व हिदायत उस पर आयद किए गए हैं। सवाल: क्या आप ये कहेंगे कि सिर्फ हकीकी मुसलमान ही मर्द सालेह है? जवाब: जी हाँ। सवाल: अगर हम आपके इरशाद से ये समझें कि आपके नज़दीक सियासी मुसलमान कहलाने के लिए सिर्फ अकीदा काफ़ी है और हकीकी मुसलमान बनने के लिए अकीदे के अलावा अमल भी ज़रूरी है, तो क्या आपके नज़दीक हमने आपका मफ़हूम सही तौर पर समझा है? जवाब: जी नहीं, आप मेरा मतलब सही तौर पर नहीं समझे। सियासी मुसलमान के मामले में भी अमल ज़रूरी है। मेरा मतलब यह है कि अगर कोई शख्स उन अकायद के मुताबिक अमल नहीं करता जो एक सियासी मुसलमान के लिए ज़रूरी हैं, तो वो सियासी मुसलमानों के दायरे से खारिज हो जाएगा। सवाल: अगर कोई सियासी मुसलमान उन बातों पर ईमान न रखता हो जिनको आपने ज़रूरी बताया है, तो आप उस शख्स को बेदीन कहेंगे? जवाब: जी नहीं, मैं उसे महज बेअमल कहूँगा। जमात इस्लामी से अलहदगी का पस मंज़र। ये एक हकीकत है कि मौलाना इस्लाही की जमात इस्लामी में शमूलियत एक हादसे के तौर पर हुई थी। इसकी तफसीलात इन सफ़ात में बयान हो चुकी हैं। ये बात भी हम जान चुके हैं कि पाकिस्तान के क़याम के बाद जब मौलाना मौदूदी ने अमली सियासत में बाकायदा फ़ाल होने का फ़ैसला किया, तो इसे मौलाना इस्लाही ने पसंद नहीं किया। मौलाना के मुताबिक वो किसी सियासी जमात में शामिल नहीं हुए थे। वो एक ऐसी जमात में शामिल हुए थे जिसका काम माशरे की फ़िक्री और इल्मी तत्हीर था और मुस्लिम व गैर मुस्लिम को इस्लाम की मुकम्मल दावत देना था। मगर तक़सीम हिंद के बाद वो जमात के फ़ैसले पर अमल करते हुए पाकिस्तान मुंतकिल हो गए। यहाँ आकर मौलाना मौदूदी और जमात के साथ हिकमत अमली के इख्तलाफात के बावजूद वो जमात के नज़्म के साथ पूरे जोश व खरोश से चलते रहे। जमात और मौलाना मौदूदी पर होने वाली तनकीदात का डट कर जवाब दिया, पैदोबंद की मुश्किलात भी झेली और इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए इंतहाई नागवार फैसले की भी पाबंदी की। लेकिन फिर ऐसे क्या हालात पैदा हुए कि उन्हें जमात से अलहदा होने का फ़ैसला करना पड़ा। मौलाना इस हवाले से अपने अहबाब और शागिर्दों से अपने मौक़िफ़ का बरमला इजहार करते। उनकी ये गुफ्तगू उस वक्त रिकॉर्ड का हिस्सा बन गई जब उन्होंने बरदरम डॉक्टर मंसूर उल हमीद को एक तफसीली इंटरव्यू देते हुए इस वाक़े की मुकम्मल तफसीलात बयान की। मौलाना मौदूदी साहब और मेरे दरमियान एक ज़ौक़ व फ़िक्र का इख्तलाफ शुरू ही से रहा है, लेकिन ये कोई ऐसा इख्तलाफ नहीं था कि मैं उनके साथ ताउन न कर सकूं। जमात की मजलिस शूरा में मेरी राय बहुत मौसर थी। इस बिना पर मैं सही या गलत ये महसूस करता था कि मैं जमात की पॉलिसी को बहैसियत मजमूई किसी गलत राह पर जाने से रोक सकता हूँ। इसलिए इस ज़ौक़ व फ़िक्र के इख्तलाफ के बावजूद जमात से जो मेरा ताल्लुक़ कायम हो गया था, मैंने उसे बरकरार रखना चाहा। क़याम पाकिस्तान के बाद मुझे महसूस हुआ कि मौलाना मौदूदी साहब में कुछ ऐसी तब्दीलियाँ हो गई हैं जो बिलाखिर गुमराह कुन नताइज तक मुंतहा हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर मैंने ये महसूस किया कि वो जो जत्थाबंदी कायम करने में कामयाब हो गए हैं, अब जल्द से जल्द उस जत्थाबंदी की कीमत वसूल करना चाहते हैं। दूसरी चीज़ ये थी कि उनके बाज़ मुतक़िदीन ने उन्हें ये बावर करा दिया कि अब इस मुल्क के अवाम मुस्लिम लीग की क़यादत को आपकी क़यादत से तब्दील करना चाहते हैं और इसके लिए लोगों में बेचैनी पाई जाती है। मैंने महसूस किया कि यह ख्याल वाकई मौलाना के अंदर जड़ पकड़ गया है और वो ऐसा समझने लगे हैं। तीसरी चीज़ ये थी कि उनके बाज़ गाली अक़ीदतमंदों ने उन्हें ये बावर करा दिया कि तहरीकें सिर्फ उसूल और नज़रियात पर नहीं चला करती, बल्कि इसके लिए शख्सियत की ज़रूरत होती है और शख्सियत आपसे आप नहीं बनती, बनाई जाती है। इसलिए जब तक हम आपके लिए वो तमाम लवाज़िम इख्तियार नहीं करेंगे जो शख्सियत बनाने के लिए ज़रूरी हैं, तब तक ये काम आगे नहीं बढ़ सकता। वाक़या यह है कि मौलाना मौदूदी साहब पर उनके साथियों का ये जादू भी कारगर हो गया था। मेरे इल्म में जब ये बातें आईं तो मौलाना से मुख्तलिफ मुलाकातों में ये वाज़ेह करने की कोशिश की कि ये महज एक वसवसा है कि इस मुल्क के अवाम आपकी क़यादत से मुस्लिम लीग की क़यादत को बदलना चाहते हैं। ये बहुत दूर की चीज़ है, इसका फ़िलहाल कोई इनकार नहीं। मैंने ये भी समझाने की कोशिश की कि इसमें तो कोई शुबा नहीं कि तहरीकें शख्सियत से चलती हैं, लेकिन शख्सियत मसनूई तौर पर नहीं बनाई जाती, बल्कि खिदमत से आप बनती है। आप जो खिदमत कर रहे हैं यही खिदमत आपको बनाएगी, और अगर इस मकसद के लिए मसनूई तरीक़े इख्तियार किए गए तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि आपके लिए वो तमाम चीज़ें इख्तियार की जाएंगी जो मौजूदा ज़माने में लीडरी के लवाज़िम व खुसूसियात में समझी जाती हैं और जिन्हें आप हराम समझते हैं। मौलाना मौदूदी साहब मेरी ये बातें हस्ब आदत नहायत तवज्जो से सुनते और मुझे इत्मीनान दिलाते कि मैं ऐसी गलत फहमी में नहीं हूँ।
मगर हकीकत में वही सब कुछ होने लगा जिसकी तरफ मैं उनको तवज्जो दिलाता रहा था। चुनाचे लीडरों वाले सारे लवाजिम इख्तियार किए गए। हर कदम पर तस्वीरें ली जाने लगीं। जहां जाते वहां पहले से इत्तला पहुंच जाती कि इस्तकबाल किया जाए। स्टेशन पर लोग आएं और खैर मकदम के नारे लगें। इन चीज़ों से मेरा ये एहसास कवी हो गया कि गाड़ी अब उसी रास्ते पर चल निकली है। ताहम कोई ऐसी बात नहीं हुई जो मुझे मजबूर कर देती कि मैं जमात से अलग हो जाता। मैं अपने आप को शूरा में एक मौसर वजूद समझता था और मेरा ख्याल था कि मैं इंशाअल्लाह जमात को बहैसियत मजमूई किसी गलत रास्ते पर जाने नहीं दूंगा। बिलाखिर पंजाब के पहले इलेक्शन का मरहला पेश आ गया। उस वक्त मेरी और मेरे बास हम ख्याल दोस्तों की राय ये थी कि फिल वक्त इलेक्शन में हिस्सा लेना जमात के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। लेकिन चूंकि मौलाना मौदूदी साहब का जहन इलेक्शन लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका था, इसलिए हम शिद्दत के साथ इसकी मुखालफत भी नहीं करना चाहते थे। चुनाचे इलेक्शन में मौलाना मौदूदी साहब एक सियासी पार्टी की हैसियत से मैदान में उतर गए और उनके वो साथी जो ऐसे ही किसी मौके के इंतज़ार में थे, इलेक्शन में पूरी तरह सरगर्म अमल हो गए। लेकिन नतीजा ये निकला कि इलेक्शन में शरीक होकर जमात ने उन तमाम अखलाकी व मजहबी उसूलों को पामाल कर दिया जिनका वो अब तक ऐलान करती रही थी। बहैसियत एक सियासी जमात वो कोई कामयाबी हासिल न कर सकी, बल्कि जितने लोग जमात के उम्मीदवार की हैसियत से मैदान में उतरे थे, उनमें से शायद कोई साहिब भी अपनी ज़मानत वापस नहीं ले सके। इखलाकी हैसियत से जमात ने जिन संगीन गलतियों का इर्तिकाब किया, उनकी वजह से जमात में एक शदीद किस्म का बहरान पैदा हो गया कि हम किस लिए उठे थे, हमारे दावे क्या थे, आज तक क्या ऐलान करते रहे और किस तरह एक ही आजमाइश में सब कुछ खो कर रख दिया। इस बहरान के नतीजे में जब एक बददिली सी पैदा हुई तो मजलिस शूरा ने गालिबन 1956 के अवाइल में चंद अरकान पर मुश्तमिल एक जायज़ा कमेटी मुकर्रर की थी, जिसके सुपुर्द ये काम किया गया था कि वो तमाम हालात का जायज़ा लेकर मुफस्सिल रिपोर्ट शूरा में पेश करे। लेकिन अमीर जमात मौलाना मौदूदी साहब इस जायज़ा कमेटी की तश्कील पर बहुत बरहम हुए और उन्होंने दूसरे एतराज़ात के अलावा ये एतराज़ भी किया कि इस कमेटी को मरकज़ी तंजीम के मोहतसिब की हैसियत दी गई है, हालांकि इसमें बाज़ अरकान बहुत नापसंदीदा हैं। चुनाचे ये कमेटी मौलाना मौदूदी साहब के मुसलसल मुतालबे की बिना पर तोड़ दी गई। फिर मजलिस शूरा ने 4 सीनियर अरकान गाजी अब्दुल जब्बार, शेख सुल्तान अहमद, हकीम अब्दुल रहीम अशरफ और मौलाना अब्दुल गफ्फार हसन साहब पर मुश्तमिल एक और कमेटी मुकर्रर की, जिसके सुपुर्द भी यही काम किया गया। इस जायज़ा कमेटी ने पूरे मुल्क का दौरा किया, हर जगह अरकान जमात के बयानात लिए और कई महीनों की मेहनत शाक़ा के बाद एक रिपोर्ट मुरतब की। जब ये रिपोर्ट मुरतब होकर अमीर जमात को मिली तो बदकिस्मती से अमीर जमात ने इसे अपने खिलाफ एक चार्जशीट समझ लिया। ताहम जब शूरा में ये रिपोर्ट पेश हुई तो शूरा ने, जिसके सदर मौलाना मौदूदी साहब थे, मुत्तफ़क़ा तौर पर जायज़ा कमेटी के अरकान की खिदमात को सराहा, उनका शुक्रिया अदा किया और 4 शिकों पर मुश्तमिल एक करारदाद मंजूर की, जिसमें यह एतराफ़ किया गया कि कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन वो ऐसी गलतियां नहीं हैं जिन पर काबू ना पाया जा सके। आइंदा एहतियात की ज़रूरत है। इस करारदाद की एक नहायत अहम शिक ये थी कि आम इंतखाबात की सरगर्मियों से फ़िलहाल सरफ़ नज़र करके माशरे की इस्लाह पर ज़्यादा जोर दिया जाए, क्योंकि इस्लामी खतूत पर माशरे की इस्लाह ही बिलाखिर मुल्क में सही सियासी तब्दीली का ज़रिया बन सकेगी। इस करारदाद को मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर कर लेने के बाद मजलिस शूरा का इजलास दुआ और दुरूद पढ़कर ख़त्म कर दिया गया। इस करारदाद को मंजूर कर लेने के बाद मेरे नज़दीक मजलिस शूरा ने इस बहरान पर जो इंतखाबात में हिस्सा लेने से पैदा हो गया था, काबू पा लिया था। लेकिन मौलाना मौदूदी साहब ने इस करारदाद को दिल से नहीं माना। नेज़ ये खलिश भी उनके दिल से नहीं निकली कि जायज़ा कमेटी की रिपोर्ट उनके खिलाफ एक चार्जशीट है। चुनाचे शूरा के इजलास के ख़त्म होने के कुछ ही दिन बाद उन्होंने जायज़ा कमेटी के 4 अरकान को एक नोटिस भेज दिया कि चूँकि आप हजरात एक नादानिस्ता साजिश के मुर्तकिब हुए हैं, इसलिए शूरा से इस्तीफ़ा दें, वरना मैं आपके हल्के के अरकान को लिखूँगा कि वो आपको वापस बुला लें। मैं गुज़िश्ता कई बरसों से महसूस कर रहा था कि मौलाना मौदूदी साहब शुराइयत को, जो इस्लामी निज़ाम की बुनियादी खुसूसत है, जमाती मामलात में अहमियत नहीं देते। लेकिन इस वाक़े ने मेरे एतमाद को बिल्कुल ही मुतज़लज़ल कर दिया, क्योंकि मौलाना मौदूदी साहब का ये इक़दाम दस्तूर जमात ही नहीं, अदल व इंसाफ के इब्तदाई तकाज़ों के एहतराम से भी खाली था।
चुनाचे मैंने सरी नाइंसाफ़ी और जमाती मसाले के लिहाज से मौलिक फ़ैसले पर उनकी तवज्जो दिलाने की कोशिश की और उनके सामने ये वाज़े किया कि आपका ये फ़ैसला हर पहलू से गलत है। इसलिए जिनको आपके अहकाम पहुँच गए हैं उन्हें वापस लीजिए और जिन तक नहीं पहुँचे उन्हें रोक दीजिए, वरना ये चीज़ बड़े हादिसे पर मुंतहा होगी। मौलाना मौदूदी साहिब मुझे तसल्ली देते रहे कि इस पर गौर किया जाएगा, लेकिन अमलन वो इसी पर मुसिर रहे। तब मैंने उनको एक मुफस्सिल ख़त लिखा जिसमें मैंने उनकी तवज्जो इस हकीकत की तरफ मबजूल कराई कि अमीर जमात की हैसियत से उनका ये इक़दाम दस्तूर ही के नहीं अदलो इंसाफ के भी ख़िलाफ़ है। मेरा ये ख़त एक तारीख़ी ख़त है जो उस ज़माने में प्रेस में भी आ गया था और जिसे पढ़कर शाम के उमर बाहुल अमीरी ने, जो उस ज़माने में पाकिस्तान के सफ़ीर हुआ करते थे, कहा था, क़द कतबता हाज़ल किताबा कमा यक्तुबुल क़ाज़ी क़ज़ान वलाकिन फ़ीही बादुल खुशूनत। यानी आपने ख़त ऐसे लिखा है जैसे काजी अपना फ़ैसला लिखता है, लेकिन ज़रा तल्ख़ है। मौलाना मौदूदी साहिब ने मुझे इस ख़त का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अगले रोज़ नहायत अजीब व गरीब अंदाज से जमात की अमारत से मुस्ताफ़ी हो गए। कुछ अरसे से मौलाना मौदूदी साहिब ने शूरा के इजलासों में ये तर्ज़ अमल इख्तियार कर रखा था कि जब कभी वो अपने मौक़िफ़ को दलाइल के ज़रिए मनवाने में नाकाम रहते तो फ़ौरन इस्तीफ़े की धमकी दे देते। सहमाही तदब्बुर, अप्रैल 1998। मौलाना इस वाक़े की मज़ीद तफ़सीलात बताते हुए फरमाते हैं, वो इससे पहले शूरा के इजलासों में कई बार इस्तीफ़े की धमकी दे चुके थे और इसका मकसद शूरा को मरूब करना और दीगर अरकान को ये तासुर देना होता था कि इख्तलाफ करने वाले हज़रात अमीर जमात की दिल शिकनी का बाइस बन रहे हैं। चुनाचे इस दफ़ा जब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया तो जमात की मजलिस शूरा ने बिल इत्तेफ़ाक़ ये तय किया कि इस्तीफ़े को नहायत खुफिया रखा जाए, लेकिन मरकज़ी स्टाफ ने इसे नहायत धूमधाम से अखबारात में शाया करा दिया और जगह जगह आम अरकान को यह तासुर भी दिया गया कि दर हकीकत मेरी कोई गुस्ताखी है जो जमात के लिए इस हादसे का बाइस बनी है। इसके साथ ही साथ जमात के बेशतर हलकों में जायज़ा कमेटी के अरकान और उनसे हमदर्दी रखने वाले दीगर हजरात के खिलाफ बहुतान तराजियों की एक मकरू मुहिम शुरू हो गई। इस इस्तीफ़े पर गौर करने के लिए मजलिस शूरा का एक हंगामी इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें चंद ऐसे अरकान जिनकी रुकनियतें इस अरसे में मुअत्तल कर दी गई थीं वो भी शरीक हो गए। इस शूरा ने अमीर जमात पर गैर मशरूत एतमाद का इजहार भी किया और अमीर जमात को खुश करने के लिए पॉलिसी में भी मुदाखलत कर दी, जिसका उसे कोई इख्तियार नहीं था। मैं उस शूरा में शरीक नहीं था, चूँकि मैं अमीर जमात पर शूरा के गैर मशरूत इजहार एतमाद को अमीर जमात के उन तमाम फ़ैसलों की तौसीक़ समझता था जो उन्होंने जायज़ा कमेटी के अरकान के ख़िलाफ़ किए। इसलिए मैंने इस दौरान में जमात से इस्तीफ़ा दे दिया। मेरे इस्तीफ़े के बाद चौधरी ग़ुलाम मोहम्मद साहिब, जो उस वक्त कायम मकाम अमीर बनाए गए थे, मौलाना बाकर ख़ान साहब के साथ मुझे मिले और मुझे ये यकीन दिलाया कि इस शूरा के इज़हार एतमाद का मतलब हरगिज़ अमीर जमात के जायज़ा कमेटी के अरकान के ख़िलाफ़ इक़दामात की तौसीक़ नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि दिसंबर की शूरा की करारदाद अपनी जगह कायम है। नेज़ ये कि अमीर जमात जायज़ा कमेटी के अरकान को भेजे गए नोटिस को न सिर्फ वापस लेंगे बल्कि उनसे मुआफ़ी भी मांगेंगे। उन हजरात की इन यकीन दहानियों के बाद मैंने अपना इस्तीफ़ा वापस ले लिया, लेकिन अफसोस ये है कि ये हजरात उन वादों में से किसी भी वादे में सच्चे साबित नहीं हुए। शूरा की इस करारदाद के बाद मौलाना मौदूदी साहिब ने अपने इस इस्तीफ़े को, जिसमें कहा गया था कि ये किसी भी सूरत में वापस नहीं होगा, सिर्फ 3 ही दिन के बाद वापस ले लिया। लेकिन जायज़ा कमेटी के अरकान के बारे में वो अपने इसी फ़ैसले पर जमे रहे। नतीजा ये हुआ कि वो चारों अराकीन शूरा अलग किए गए और उनके साथ ही कई दूसरे हजरात ने भी बददिल होकर जमात से इस्तीफ़ा दे दिया। वो शूरा ख़त्म हो गई जो मौलाना मौदूदी साहिब के नुक्ता नज़र से इख्तिलाफ कर सकती थी। सिर्फ वो लोग रह गए जिनका ख्याल ये था कि दीन लाए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, लेकिन इस ज़माने में इसे मौलाना मौदूदी साहिब ही ने समझा है। अगरचे ऐसी खुशामदी और जी हुजूरी किस्म की शूरा से किसी इख्तिलाफ की तवक्को रखना अबस था, फिर भी मौलाना मौदूदी साहिब ने किसी मुतवक्के सरकशी से बचने के लिए जमात में इस्लामी शुराइयत के निज़ाम को बदल कर एक आमिराना और डिक्टेटराना निज़ाम नाफिज कर दिया। चुनाचे माची गोट के इज्तिमाई अरकान में उन्होंने मुख्तलिफ तरीक़ों से दस्तूर में ऐसी तरामीम कराईं जिनकी रूह से शूरा को आमिला के बजाय एक मुशावरती कौंसिल की हैसियत दे दी गई।
चंद माह बाद इस नई शूरा का इजलास कोट शेर सिंह में हुआ और इसमें मौलाना मौदूदी साहिब ने अपने लिए उन इख्तियारात का मुतालबा किया जो हालत जंग में किसी फौज के सिपह सालार को हासिल होते हैं, और साथ ही ये धमकी भी दी कि अगर उन्हें ये इख्तियारात न दिए गए तो वो जमात की अमारात से इस्तीफ़ा दे देंगे। मैंने उनकी इस राय पर तनकीद की थी, लेकिन शूरा ने उनके इस्तीफ़े की धमकी के सामने घुटने टेक दिए। मैं शूरा के उस इजलास से उठकर चला आया और बाद में दस्तूर में वो तमाम तरामीम कर दी गईं जिनके बाद जमात का जमहूरी और शूराई निज़ाम एक आमिराना और डिक्टेटराना निज़ाम में बदल गया। तरमीम शुदा दस्तूर के मुताबिक चंद अरकान पर मुश्तमिल आमिला बनाई गई जिसे बज़ाहिर वसी इख्तियारात दिए गए, लेकिन अमलन ये तमाम इख्तियारात अमीर जमात की ज़ात में मुर्तकिस कर दिए गए, क्योंकि इस दस्तूर के मुताबिक अब अमीर जमात आमिला की अक्सरियत के राय के पाबंद नहीं थे और वो सारी आमिला या आमिला के चंद अरकान को जब चाहे माजूल कर सकते थे। जब मामला यहाँ तक पहुँच गया तो मुझ पर यह हकीकत अच्छी तरह वाज़ेह हो गई कि अब जमात का दस्तूर, निज़ाम, पॉलिसी, हर चीज़ बदल चुकी है। ये जमात अकामत दीन के लिए उठी थी और इसके लीडरों ने इसे उठाकर गलत रास्ते पर डाल दिया। उनकी इंतहाई आरजू बस यही थी कि किसी तरह असेंबली की चंद सीटों पर कब्जा कर लें। शहादत हक और अकामत दीन के नारे खोखले हो चुके थे। मैंने इसके अंदर रहकर इस्लाह करने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। मेरे लिए ये भी मुमकिन नहीं था कि मैं अमीर जमात के उन इक़दामात को जो उन्होंने जायज़ा कमेटी के अरकान के ख़िलाफ़ किए खामोशी से बर्दाश्त कर लेता। अगर मैं जुल्म और नाइंसाफ़ी पर खामोश रहता तो मेरा ज़मीर मुर्दा हो जाता और मेरी रूह खुदा से शर्मिंदा होती। इस दौरान में कुछ लोगों ने मुसालिहत की कोशिशें की, लेकिन जब वो भी मायूस हो गए तो मैंने इस्तीफ़ा दे दिया और आखिर में ये भी लिख दिया कि ये इस्तीफ़ा वापस लेने के लिए नहीं है। मौलाना मौदूदी साहिब मेरे पास आए और कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप अपना इस्तीफ़ा वापस लें। मैंने कहा, मौलाना मैंने तो अर्ज़ कर दिया है कि ये इस्तीफ़ा वापस लेने के लिए नहीं है। मेरा ख्याल है कि मैंने आपको अच्छी तरह जान लिया और आपने मुझे अच्छी तरह जान लिया। अब हम शायद कभी भी मुज्तमा नहीं हो सकेंगे। हाज़ा फ़िराक़ बैनी व बैनका, यानी मेरे और आपके दरमियान अब अलहदगी है। मौलाना मौदूदी साहिब उठकर चले गए और जमात से मेरी अलहदगी हो गई। सहमाही तदब्बुर, अप्रैल 1998, 48-53। यहाँ हम उन तब्दीलियों का जिक्र करते हैं जो कोट शेर सिंह के इजलास में मंजूर हुई। इससे बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि मौलाना का ये जुमला किस कदर मबनी पर हकीकत है कि मौलाना मौदूदी साहिब ने अपने लिए उन इख्तियारात का मुतालबा किया जो हालत जंग में किसी फ़ौज के सिपह सालार को हासिल होते हैं। जमात इस्लामी के दस्तूर में अहम तब्दीलियाँ। 1. नज़्म जमात और तहरीक इस्लामी को चलाने की आखिरी जिम्मेदारी अमीर जमात पर होगी और वो मजलिस शूरा और अरकान जमात के सामने जवाबदेह होगा। 2. जमात की पॉलिसी की तश्कील और अहम मसाइल के फ़ैसले अमीर जमात मजलिस शूरा के मशवरे से करेगा, जबकि मजलिस शूरा अमलन अमीर जमात की मुकम्मल मुरीद हो चुकी थी। 3. मजलिस शूरा के अरकान में से अमीर जमात को अपनी मजलिस आमला खुद मुंतखब कर लेने का इख्तियार होगा और मजलिस आमला को वो इख्तियारात हासिल होंगे जो आइंदा दस्तूर जमात में उसे दिए जाएंगे। 4. अहम मामलात में अगर कोई फौरी कदम उठाने की ज़रूरत हो और मजलिस आमला या मजलिस शूरा का इजलास मुनक्किद करने का इम्कान ना हो तो अमीर जमात मजलिस आमला या मजलिस शूरा के जिन अरकान से भी मशवरा ले सकता हो उनके मशवरे से वो कदम उठा सकता है। 5. अमीर जमात अपनी मदद के लिए नायब उमरा मुकर्रर कर सकेगा और वो तफवीज़ करदा फ़राइज़ अदा करने और इख्तियारात इस्तेमाल करने के मजाज होंगे। 6. मजलिस शूरा के अरकान की तादाद कम अज़ कम 50 होगी। हर इंतखाब से पहले इस तादाद को मुख्तलिफ तंजीमी हलकों के अरकान की तादाद के तनासुब से इन हलकों पर तकसीम किया जाता रहेगा, मगर कोई हल्का कम अज़ कम एक नशिस्त से महरूम न रहेगा। 7. मरकज़ी मजलिस शूरा के इजलास में अरकान जमात सामे की हैसियत से हाजिर हो सकेंगे, अलबत्ता किसी ख़ास इजलास के लिए अमीर जमात मुसाले जमात की खातिर इस इजाज़त को मनसूख कर सकेगा। 8. मजलिस शूरा के कुल मुंतखब अरकान की 2/3 अक्सरियत से अगर अमीर जमात के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की करारदाद मंजूर हो जाए तो अमीर जमात माजूल हो जाएगा। 9.
मजलिस शूरा को ताबीर दस्तूर और तरमीम दस्तूर के इख्तियारात हासिल होंगे। जो अरकान जमात दस्तूर जमात की पाबंदी के अहद पर कायम हो, मगर नस्बुल ऐन के हुसूल के अमली तरीक़ों में जिनका नुक्ता नज़र जमाती फ़ैसलों से मुख्तलिफ हो, उन्हें जमात के अंदर हस्ब ज़ैल हुदूद को मलहूज़ रखना होगा। 1. उन्हें जमात के इज्तिमात में इख्तिलाफ ख्याल का इज़हार का पूरा हक़ हासिल होगा, मगर इस गरज के लिए प्रेस और पब्लिक प्लेटफॉर्म को ज़रिया बनाने का हक़ ना होगा, और ये हक़ भी ना होगा कि वो फ़र्दन अरकान जमात में नजवा करते फिरें। 2. जमात में कसरत राय से जो फ़ैसले हो जाएं, उनको वो जमाती फ़ैसलों की हैसियत से तस्लीम करेंगे और उनके पाबंद होंगे। अलबत्ता उन्हें यह हक़ हासिल होगा कि वो मुकर्ररा हुदूद के अंदर इन फ़ैसलों को मुतल्लिक़ा इज्तिमात में बदलवाने की कोशिश करें। 3. अगर कोई रुकने जमात की तय करदा पॉलिसी से इख्तलाफ का इजहार कर दे, तो वो जमात में किसी ऐसे मनसब पर न रह सकेगा जिसका फरीज़ा जमाती पॉलिसी को नाफिज करना हो। जमात इस्लामी पाकिस्तान का ये कुल पाकिस्तान इज्तिमाई अरकान करार देता है कि 1. दस्तूरी करारदाद नंबर 1 और नंबर 2 मज़कूरा बाला की बुनियाद पर आइंदा मुंतखब होने वाली मजलिस शूरा को जमात के दस्तूर के नए सिरे से तदवीन करनी होगी। 2. 1955 के इज्तिमाई अरकान में जो मजलिस तरमीम दस्तूर मुंतखब की गई थी, उसके गौर के लिए जो तरामीम आई थीं, वो नई मजलिस शूरा के सुपुर्द कर दी जाएं। 3. आइंदा मजलिस शूरा का इंतखाब 31 मार्च 1957 से पहले हो जाना चाहिए। 4. नई मजलिस शूरा के इंतखाब तक मौजूदा मजलिस शूरा कायम रहेगी। कुल पाकिस्तान इज्तिमा अरकान के मज़कूरा बाला फ़ैसलों के मुताबिक मजलिस शूरा का इंतखाब 31 मार्च 1957 से पहले करा लिया गया। इस मजलिस का पहला इजलास कोट शेर सिंह, ज़िला लाहौर में जनाब सरदार मोहम्मद खान साहिब के मकान पर 19 से 26 मई 1957 मुनक्किद हुआ। इस इजलास में मजलिस के 50 में से 45 अरकान शरीक हुए और इसमें दस्तूर की दफ़ा 34 की शिक 6 के सिवा पूरा दस्तूर बिल इत्तफाक मंजूर हुआ। सिर्फ मज़कूरा शिक पर ही राय शुमारी की ज़रूरत पेश आई। इसमें 4 अरकान ने खिलाफ राय दी, 2 अरकान गैर जानिबदार रहे और उन्होंने राय शुमारी में हिस्सा नहीं लिया। ये दस्तूर 25 शव्वाल 1376 हिजरी मुताबिक 26 मई 1957 को मंजूर हुआ और 2 ज़ीक़ादा 1376 हिजरी मुताबिक 1 जून 1957 बरोज़ हफ्ता से नाफिजुल अमल हुआ। बहवाला दस्तूर जमात इस्लामी के इर्तिकाई मराहिल, ज़मीमा 5।